Good morning dear students and welcome to Genesis. Well, this lecture is in continuation to the lectures I have given on the chapter life processes. लेकिन आज we are going to start human respiratory system. In my previous class I have already explained कैसे aquatic animals को difficulty होती है to obtain dissolved oxygen and that is why their rate of breathing is higher. But today we will specifically talk about terrestrial organisms and about human beings. See, in case of terrestrial organisms the oxygen has to be taken from the atmosphere which is present in the air. तो ये तो थोड़ा easy हो जाता है हम लोग के लिए. But for this we have some special organs dedicated because always remember for the process of respiration oxygen has to be supplied to a cell and in return the carbon dioxide has to be taken out. So there is a constant exchange which is happening between these two respiratory gases. और ये जो exchange होता है ये जिस surface से होता है वो surface बहुत ही delicate और thin है. ये surface क्या है, कहाँ है, we will study as we proceed further. As of now just remember in case of terrestrial organism हमारे पास कुछ dedicated organs हैं to perform the process of respiration. So now let us know what are these organs. हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इट एक्चुअली कंप्राइजेस ऑफ फ्यू पैसेजेस जिसके थ्रू एयर जिसे हम इनहेलेशन के दौरान लेते हैं एंटर्स इनटू द लंग एंड द सेम एयर आफ्टर गिविंग ऑक्सीजन एंड टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड आउट. तो इस प्रोसेस को ये जो फ्लो चार्ट में ये जो पैसेज है तो इस पैसेज को जरा समझते हैं. नाउ इट स्टार्ट्स विद नंबर 1 नॉस्ट्रल्स. नॉस्ट्रल्स वी नो दीज आर दी टू ओपनिंग्स जिसके थ्रू हम एयर अंदर लेते हैं एंड देन दिस एरिया दैट इज नोन एज द नेजल चेंबर और नेजल पैसेज. नेजल चेंबर में देयर आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एंड देयर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ म्यूकस. ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है विच प्रिवेंट्स डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू आवर बॉडी. रिमेंबर वन थिंग, डस्ट पार्टिकल्स के साथ जर्म्स भी एंटर कर सकते हैं एंड दे कैन डायरेक्टली गो इनटू योर लंग्स. ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है दे आर जस्ट नॉट प्रेजेंट इन द नेजल चेंबर रादर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑल्सो एंड दिस बेसिकली प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम जर्म्स एंड फ्रॉम हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स एवरी टाइम व्हेन यू आर ब्रीदिंग. अगर यही हेयर लाइक स्ट्रक्चर दे डोंट वर्क प्रॉपर्ली देन दीज डस्ट पार्टिकल्स एंड germs will not be stopped and ये डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं and they cause diseases. ऐसा ही एक कंडीशन होता है ड्यूरिंग लंग कैंसर्स when people smoke. स्मोकिंग के कारण ये फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दे स्टॉप वर्किंग and as a result of which हमारे बॉडी में कोई भी फिल्टर नहीं रहता है which can stop the germs or from the dust particles from entering into the body. Next to this, that means right after nasal chamber is pharynx. याद रखना pharynx is that part which is a common opening between food and air. यहाँ तक opening common है and after that we know there are two separate pipelines. One is known as the windpipe or trachea, another is the food pipe also known as esophagus. Pharynx के ठीक बाद there is a cartilaginous box-like structure जिसे कहा जाता है larynx and this larynx is also known as our voice box. So हम जो बोल पाते हैं it is because of the vibrations that gets created inside the larynx. ठीक larynx के ऊपर somewhere here there is a lid-like structure. इस lid-like structure को बोला जाता है epiglottis. याद रखना ये lid-like structure will not allow food from entering into the larynx. वो बंद रहता है when we are eating. इसीलिए अगर खाते खाते आप बात करते हैं तब कभी कभार this epiglottis opens because larynx is used for production of sound और अगर ये open हो जाता है then there are chances कि food particles आपके esophagus की जगह चला जाएगा आपके trachea के अंदर and that is when we start to cough and हमें vomiting हो जाती है. So do not ever talk while you are eating. epiglottis को ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहिए. After this is the part which is called the trachea which is actually the windpipe. Trachea goes down and is divided into a Y-shaped structure. दोनों को अगर लेबल करते हैं तो हम बोलेंगे bronchi and if you are labeling one then it is bronchus. This bronchus is further divided into few branches. पहले ब्रांच को secondary bronchioles कहा जाता है और उसके बाद tertiary bronchioles. So पहला हो गया bronchus and this bronchus will divide further into secondary and tertiary bronchioles. Now if you observe carefully, trachea, bronchus and bronchioles में हमें कुछ ring-like structures दिखते हैं. These are ring-like cartilaginous structures. ये क्यों है? It basically prevents the pipe जो trachea है, it's a cylindrical pipe from collapsing. कब collapse करेगा? Imagine करो जब आपने सांस लिया तो air enters into this pipe and it remains extended. लेकिन जब आप exhale करते हैं, there are high chances that this will collapse and if it collapses, we will die. So to give it firmness so that it does not collapse, the trachea, the bronchi, bronchioles up to tertiary bronchioles, they have these cartilaginous ring-like structures. अब ये जो tertiary bronchioles हैं, they finally open up into bag-like structures. याद रखना ये bag-like structures बहुत important है क्योंकि जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था I told you ये जो exchange of respiratory gases होता है between oxygen and carbon dioxide, it happens through a surface which is very thin and delicate and क्योंकि ये thin and delicate है इसे protect करके बहुत अंदर में रखा जाता है हमारे बॉडी के. That structure is these are bag-like structures and they are very vascular और इन्हें कहा जाता है alveoli. या
याद रखना एल्वियोली, ये है वो स्ट्रक्चर विच इज बेसिकली द साइट ऑफ एक्सचेंज। किसका एक्सचेंज होता है? ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो अगर कभी पूछा जाए देन दिस इज योर आंसर। और क्यों, व्हाई आर दे सो स्पेशल? नंबर वन, दे आर वैस्कुलर, मतलब दे हैव ब्लड वेसल्स ऑल अराउंड देम। नंबर टू, दे आर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, सो दैट गिव्स मोर surface area for exchange. And number 3, they are lined by a single cell layer. इतना thin layer होता है, it is just a single cell layer. So if I draw this, तो इसमें जो layer बना है of the alveolus, it is only made up of a single layer of cells. So ये exchange और ज़्यादा आसान कर देता है. So when you inhale, the oxygen rich gas will stay here. और यहाँ है blood vessels. These blood vessels have blood from all over your body. So इनके पास कौन सा गैस ज़्यादा है? CO2. By basic diffusion there will be exchange. Carbon dioxide from here will go here क्योंकि यहाँ CO2 की मात्रा कम है, and oxygen from here will come into the blood, and from here the blood will rush to all the parts of the body. तो हम लोग कहते हैं कि lungs are the organs जो basically purification करते हैं. But अगर specifically पूछा जाए lungs में कौन ये purification और exchange में help करता है, then they are the alveoli. इसका singular है alveolus. So with this we can very clearly say कि air का जो passage है through human respiratory tract वो कैसा होगा? It will be first nostril से nasal chamber, then pharynx, then larynx, then trachea, bronchi, secondary bronchioles, tertiary bronchioles, and then finally the alveoli. इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखा जाए, फ्रॉम द ब्रोंकाई ऑनवर्ड दे आर ऑल इनसाइड दिस स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द लंग. और ठीक लंग्स के नीचे देयर इज अ पार्ट विच इज कॉल्ड द डायाफ्राम. व्हाट इज द रोल ऑफ डायाफ्राम हम लोग समझेंगे अब थोड़ी ही देर में. सो नाउ यू नो द पैसेज ऑफ एयर कैसे होता है थ्रू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो नाउ दैट वी ऑलरेडी नो द रेस्पिरेटरी पैसेज, अब समझते हैं हम सांस लेते या सांस छोड़ते कैसे हैं. सो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन, एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग and the process of giving out air is called exhalation. So inhalation and exhalation ये जो process है इसे breathing के अंदर हम लोग पढ़ते हैं. याद रखना breathing और respiration दोनों same नहीं है. There is lots of difference. Respiration एक chemical process है जहाँ oxygen को glucose तोड़ने के लिए use किया जाता है, and there are new substances produced like carbon dioxide is generated, energy is generated. On the other hand, जब हम breathing की बात करते हैं it's a physical process. इसमें कोई नई चीज नहीं बनती. There is no chemical reaction. So it's basic physical process of taking in and giving out air. लेकिन इस process को attain करने के लिए there is a mechanism. Okay, there are many who are playing games here for to attain breathing. होता क्या है, if we have to draw in air from the external environment into our body, हमें हमारे बॉडी में एक प्रेशर की डेफिशिएंसी क्रिएट करनी होती है. सो जो thoracic cavity है, रिमेंबर thoracic cavity है हमारे rib cages, the middle bone sternum and पीछे vertebral column. इन तीनों चीजों से एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे thoracic cavity कहते हैं. सो अगर इस thoracic cavity को हम इंक्रीज कर सकते हैं, दिस डेवलपमेंट ऑफ अ लो एयर प्रेशर कंडीशन, और इससे क्या होता है, वी कैन very easily draw in air from external environment. Similarly, अगर हम इस thoracic cavity को compress करते हैं, then that will push the air outside. So इन दोनों चीजों को हम attain कैसे करते हैं? So पहला जो होता है the rib cage of human being that gets pushed outwards, उसे बाहर की तरफ ढकेला जाता है. And the diaphragm, जो स्ट्रक्चर मैंने उस डायग्राम में ऑलरेडी दिखाया था, it actually goes down. So अगर ये rib cages हैं और ठीक इसके नीचे ये diaphragm है, so the rib cages they are pushed outwards and the diaphragm is pushed downwards. याद रखना डायफ्राम एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो जब आप उसे नीचे की तरफ पुश करते हैं इट बिकम्स फ्लैट. दैट इज व्हाई आई से द डायफ्राम गोज फ्लैट डाउनवर्ड्स. इन दोनों चीजों के लिए होता क्या है, देयर इज अ थोरैसिक कैविटी में इंक्रीज होता है, इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच यू कैन ड्रॉ इन एयर एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन. लेकिन जब हमें एक्सहेल करना होता है हम बस इसका रिवर्स करते हैं. द रिब केज इज प्रेस्ड इनवर्ड्स एंड द डायफ्राम कम्स अपवर्ड. इससे क्या होगा, द थोरैसिक कैविटी डिक्रीजेस एंड वेरी इजीली द एयर कैन बी एक्सहेल्ड आउट. सो हमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन समझ में आया. हमें यह भी पता चला कि बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन द एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी पैसेज एंटर्स इनटू द एल्वियोली, और वहां पे देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन द एल्वियोली एंड द ब्लड कैपिलरीज. और क्या एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोली विल गो इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड विल एंटर इनटू द एल्वियोली. लेकिन एक चीज याद रखना, थ्रू आउट दिस प्रोसेस देयर विल ऑलवेज बी सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द एल्वियोली, और इस क्वांटिटी ऑफ एयर को कहा जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम. क्यों, बिकॉज ऐसा कभी नहीं होता कि जब आप एक्सहेल करते हैं आपके पूरे सिस्टम में कोई एयर नहीं रहेगा. ऐसा कभी नहीं होता, बिकॉज अगर वैसा होता तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन हम तो सांस ले ही नहीं पाते. सो देयर इज ऑलवेज सम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज केप्ट इन द एल्वियोली टू कीप द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस रनिंग, और इस वॉल्यूम ऑफ एयर को रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर कहा जाता है.
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये जो दो रेस्पिरेटरी गैसेस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ आर दे ट्रांसफर्ड बिटवीन द एल्वियोली एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी. सो व्हेन यू इनहेल हमारे एल्वियोली में ऑक्सीजन रिच एयर आ जाता है. सो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है हमारे ही ब्लड में प्रेजेंट एक पिगमेंट जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन. रिमेंबर हमारा बॉडी मल्टी सेल्यूलर है एंड इट इज ह्यूज. सो टू कैरी ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी वी नीड समबडी हु इज गोइंग टू डू दिस जॉब. और ये जॉब हमारे लिए करता है ब्लड. लेकिन ब्लड में कौन? ब्लड के रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट है वो पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन हैज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो द ऑक्सीजन बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन और बनाता है एक कंपाउंड जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं. इट्स नॉट इन द सिलेबस, सो हम लोग बस इतना याद रखेंगे, इट इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन. एंड ये स्ट्रक्चर पहुंचता है टू एवरी सेल ऑफ योर बॉडी वेयर द हीमोग्लोबिन डिसोशिएट्स एंड ऑक्सीजन को सेल के पास भेज देता है. इन रिटर्न ये सेल्स दे हैव ऑलरेडी परफॉर्म रेस्पिरेशन, तो दे ऑलरेडी हैव कार्बन डाइऑक्साइड. ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए देयर आर टू मेथड्स. नंबर वन, इट विल सिंपली बाइंड विद हीमोग्लोबिन एंड इट फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन. अदरवाइज a small fraction of the carbon dioxide is also carried by the plasma of the blood, and this plasma of the blood and the hemoglobin together they carry carbon dioxide और लेके जाते हैं कहाँ? into the alveoli. and यहाँ से क्या होगा? there will be exhalation where these carbon dioxide will be released out into the atmosphere. so ये था पूरा process जहाँ I could explain you hemoglobin plays such a major role. so with this I finished today's class, but I have a question for you. The question is, can you name the structure which is present in plants that helps in exchange of carbon dioxide and oxygen? अगर आप आंसर जानते हैं, write down in the comment box. And yes, if you like my teaching, share my channel with your friends, subscribe my channel and keep revising. Thank you.